Bismillahirrahmanirrahim. This is Hamid Najmi and I welcome you all to another episode of iVentures. Ladies and gentlemen, iVenture is a show that is being developed with a dedicated effort to enhance your entrepreneurial skills. This is a platform where you can learn and actually grasp the idea that how you can start a new business venture. Today we will be talking about that what is more important, an idea or the money which converts idea into reality. And for that very reason, I have a very esteemed guest with me, that is Arslan Javed. Arslan has done ACCA and MPhil in Business Administration. He is a traveler, he is an entrepreneur, he is managing a very diversified portfolio of different ventures and a business coach as well. So let's welcome Mr. Arslan Javed to iVentures. Thank you very much, Hamid. It's a pleasure to be here on iVentures, and I have seen your previous shows as well. And I must say that this is a wonderful platform for the youngsters who are watching, and an opportunity to learn from different people that you invite here. Thank you so much, sir. Much appreciated. मैं आपसे सर आज ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या important है एक entrepreneur के लिए? Either it is the novel idea, which is more important, or the money that really convert that idea into a practical format. Well, I get this question a lot many times, but as you must know that both are important. They have their own significance. Money is important, idea is important, but if we actually divulge ourselves into the reality, I would like to let you know that I think that money is not as important as people have caricatured it. Okay, you can say that it is being overrated. At most places. For someone to become a businessman or an entrepreneur, I think the idea is the foremost and the most important thing. Because when the idea develops, the personality itself changes. Right. You see, when you are sitting and suddenly an idea comes to your mind, what happens? Your body language suddenly changes. The second thing that starts happening, you start developing an ideology, a philosophy. And when the philosophy begins, your travel or your movement towards your goal starts. Right. And the goal is to start whatever venture you are looking for. Very right. So, idea is the actual spark. Right. It is the ignition point. Okay. Now, when you have got an idea, the second thing you need is to click the right buttons at the right time. So, clicking the right buttons will get you the money. But get this thing straight. For all the viewers, it is to be understood that having an idea is the foremost and the most important thing, and that is what will get you money. Right, right. So you can say that the first point is the very foremost point, or the things that comes first is the idea. Yes. And this is the idea which basically attracts the money. Yes. So the idea comes first and then comes the money. Of course. Okay, well established. और इससे आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दें कि what are the basics or the baby steps which are important for an entrepreneurial journey to be start off. और दूसरा इसका ये मैं जानना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आए और इसके ऊपर डिबेट्स भी स्टूडेंट्स में चल रही है, बिजनेस क्लासेस में भी, कि क्या हर इंसान एंटरप्रेन्योर बन सकता है? मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगा, वो ये है कि ये क्या बेबी स्टेप्स हैं जिनके ऊपर चलते हुए एक पर्सन जो है वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है. तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहता हूँ, स्टार्ट यंग. Because the worst thing a person can do with his life is to start late. जैसे हमारे पास एक पैराडाइम है हमारे सोसाइटी में कि जी बच्चा मास्टर्स कर लेगा, उसके बाद उसको हम एक्सपोजर देना शुरू करते हैं, काम कराना शुरू करते हैं. It should not be like that. I believe कि स्कूल से ही आप बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना शुरू करें, उन बच्चों को मनी मैनेजमेंट सिखाएं, उन बच्चों को एक्सपोजर्स दें, उनको समर जॉब्स की तरफ थोड़ा पुश करें. नथिंग इज स्मॉल, छोटी मोटी जॉब कुछ नहीं होती. जॉब इज अ जॉब, इट ऑलवेज टीचेस यू वन थिंग और अनदर.
तो बेबी स्टेप्स की अगर मैं बात करूंगा तो दिस इज नंबर 1 फॉर दोज पीपल हु आर यंग इनफ to start ASAP as soon as possible. Do not wait for your degree to complete. Do not wait for an opportunity to ring the bell. Every second is an opportunity. What you need to do is just strike the moment. दूसरी बात ये है कि अगर आप उम्र में आगे भी निकल गए हैं और अभी भी आप कहते हैं कि you have to start, तो जो important सबसे emphasis मैं जिस चीज़ पे करता हूँ, look around you. हमें ना चाहते हुए भी लोगों से एंडोर्समेंट्स मिलती हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉर मी आई ऑलवेज एम अ गैजेट फैन. तो मेरे इर्द गिर्द जितने दोस्त हैं उन्होंने कोई भी गैजेट लेना होता है, दे ऑलवेज कम टू मी एंड से यार एजे मुझे मशवरा दें कि मैं क्या लूँ और समथिंग लाइक दैट. तो व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन पीपल स्टार्टेड एंडोर्सिंग माय गैजेट, that you are a gadget savvy person, yes, and you knew all the pros and cons of the new technology. Yes, so they started coming to me. So this for starters became a rallying point for me. और वहाँ से मैंने सोचा यार अगर मैं टेक बेस्ड कोई काम शुरू करूँ या गैजेट वाला कोई काम शुरू करूँ तो लोग तो ऑलरेडी मुझसे एडवाइस लेने के लिए आते हैं, काउंसिल लेने के लिए आते हैं. तो अगर मैं इसी को अपना बिजनेस बना दूँ तो लोग मेरे पास आएंगे. तो दिस एसेंशियली व्हाट हैपेंड व्हेन आई वाज 17 और समथिंग. मेरा फर्स्ट बिजनेस जो था इट वाज, मेरे एक नेबर थे वो कंप्यूटर्स मंगवाते थे, तो मैं उन्हीं के साथ अटैच हो गया और हमने अपने ये डेल मशीन्स मंगवानी शुरू कर दी. एंड people used to come to me all the time for suggestions, and what I used to suggest कि okay, try this thing. So when you have an endorsement from the people and you choose it as a venture, as a business, it will start you paying without any major investment. Okay. मैं कहता हूँ कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट की भी स्किल है. तीसरी चीज़ वो ये है कि जैसे एक शख्स है, उसकी एक लड़का है, उसको हर शादी में बुला लिया जाता है कि बेटा ये अरेंजमेंट्स करनी है, तुम आ जाओ. वो खाने का भी अरेंजमेंट कर रहा है, वो टेंट का भी अरेंजमेंट कर रहा है. नाउ दैट कैन बी अ स्टार्ट ऑफ अ वेरी गुड इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी, राइट? सो वंस अगेन the endorsements of the people around you, it is the first step towards becoming. So that is a key for you to take it upon and convert into a commercial business activity. दूसरा जो हमारा पोर्शन था क्वेश्चन का, क्या हर बंदा एंटरप्रेन्योर बन सकता है, इस पे एक जल्दी से कमेंट दीजिएगा. जी, हर बंदा एंटरप्रेन्योर बन सकता है. हर बंदे को अगर एंटरप्रेन्योर बनने की ज़रूरत है तो, अगर नहीं बनना चाहते इट्स ओके, यू कैन बी हैप्पी विद व्हाटएवर यू आर डूइंग. लेकिन मेरा जो आपका क्वेश्चन है मैं समझ गया हूँ कि जो लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर्स बने, तो क्या उन्हें कोई डिग्री की ज़रूरत है या कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो स्पेसिफिकली उनको इसमें हेल्प करे एंटरप्रेन्योरशिप में? तो मैं कहूँगा नहीं. ठीक है, मैं इसका एक आसान मशवरा सबको देना चाहूँगा. वो ये है टू स्टार्ट वॉलंटियरिंग. मेरे वालिद साहब कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान से सीढ़ियाँ लगाई हुई हैं, जो हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं वो आधे रास्ते पे जाके ख़त्म हो जाती है, वो हमारे लिए राइट नहीं होती. एक और सीढ़ी है वो हमें थोड़ा सा ऊपर लेके जाती है, पर वो भी राइट नहीं होती, हमें उससे नीचे उतरना पड़ता है. देयर इज़ ऑलवेज अ लैडर दैट विल टेक अस टू दैट हाइट्स दैट वी वांट एंड दैट वी डिजर्व. तो ये है कि जब हम वॉलंटियरिंग करते हैं तो एक्चुअली हम वो लैडर्स ट्राई कर रहे होते हैं. For example, if I'm volunteering as a photographer, even though if I'm not an established photographer, it will let me know मैं कितने पानी में हूँ. Exactly. And especially trying things like this will make you understand what your core abilities are. Right. और जिसको अपनी core abilities समझ आ जाएं, वो entrepreneurship के पहले जर्नी पे पहला कदम रख चुका है. Thank you so much, Arslan. Viewers, यहाँ पे टाइम है एक ब्रेक का. See you in a while. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region.
वेलकम बैक टू आई वेंचर्स। ब्रेक के जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि क्या बेबी स्टेप्स हैं एक एंटरप्रेन्योर के लिए, और यहाँ पे एक और क्यूरियोसिटी है जो मेरी पर्सनल क्यूरियोसिटी भी है, स्टूडेंट्स की भी क्वेरी में आता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ द एक्सपोजर, और क्या एक स्टूडेंट के लिए व्हाट आर द प्लेसेस टू गेन एक्सपोजर। Well, thank you for asking this question because it all started for me with this question, exposure. कि एक्सपोजर क्या होता है? एक कहावत सुनी थी, सफ़र वसीला ज़फ़र होता है। अब ज़फ़र भाई तो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं, ठीक है, उनका तो पता है, लेकिन असल क्वेश्चन ये है कि ये ज़फ़र क्या है, व्हाट इज़ दैट वी कैन एक्सप्लोर। तो मैं समझता हूँ कि एक पर्सन जब तक चीज़ों को जाके देखता नहीं है तब तक उसमें वो क्वेश्चन करने की एबिलिटी नहीं आती। राइट। तो फॉर मी इट ऑल स्टार्टेड विद ट्रैवलिंग। यानी मैं समझता हूँ कि एक्सपोजर हासिल करने के लिए आपको अपने घर से निकलना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता आप कहीं किसी नॉर्दर्न एरिया में जाएं या किसी कंट्री से बाहर चले जाएं, नहीं, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाकर वहाँ पे जाके विजिट करें, देखें लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ लोग काम कैसे करते हैं। Right. और दूसरी चीज़ ये कि जब आप दूसरे शहरों में भी जाते हैं वहाँ के लोगों से पूछें उनका माइंडसेट कैसा है। फिर दूसरे ममालिक में जाते हैं, वहाँ अपनी ही गैदरिंग्स में ना रहें, वहाँ के लोगों से घुले मिलें और उनको जानें कि उनका माइंडसेट क्या है, उनकी सोच क्या है। इससे क्या होगा, हमारे होराइजन्स खुलने शुरू होते हैं, और जब होराइजन्स खुलते हैं एक पर्सन में एक्सपोजर डेवलप होता है। और एक्सपोजर क्या होता है? एक्सपोजर इज द एबिलिटी टू लुक एट थिंग्स क्रिटिकली and differentiate between what we have and what we can have in the future. तो एक्चुअल में एक्सपोजर डेवलप्स द सेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस विद इन आवरसेल्व्स। और एक एंटरप्रेन्योर के लिए जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या है? टू बी अ क्रिटिकल थिंकर। ओके, वेरी राइट, वेरी राइट। तो आपका ये कहना है और ये मानना है कि एक्सपोजर से स्कोप बिल्ड होता है, देन यू कैन सी अ सिंपल थिंग विद मैनी लेंसेज, राइट। सो अरसलान, यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप हमें ये एक यूथ के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट एंड व्हाट इज़ योर मैसेज एज एन एंटरप्रेन्योर टू द यूथ ऑफ दिस वेरी एरिया? वेल, फॉर द यूथ आई वुड लाइक टू से failure is how we do it. Do not be afraid of failing. Do not be afraid to try. Do not be afraid to step up. ज़िंदगी में सिर्फ पहला कदम हमने उठाना होता है, आगे अल्लाह पाक और दुनिया की तमाम ताकतें हमारे साथ जुड़नी शुरू हो जाती हैं। ये बात अपनी ज़िंदगी में याद रखिएगा कि अगर आप फेलियर से गुज़र रहे हैं तो इट इज़ नॉट द एंड ऑफ इट, because failure is what teaches you what not to be and what to be. तो ये बात जहन में रखिएगा कि फेलियर की डर की वजह से एक्सपेरिमेंट कभी करना ना छोड़िएगा। दूसरा, अपने आप को पुश करें, अपने लिमिट्स को ट्राई करें, और जब तक आप जिस प्लेटफॉर्म पे भी हैं वहाँ पर बेस्ट परफॉर्म करें, क्योंकि आप अपना बेस्ट देंगे तो आप अपने रुतबे में, अपनी एबिलिटीज़ में, अपनी परफॉर्मेंस में ऑटोमेटिकली एक्सेल करेंगे, और अल्लाह पाक आपके अंदर वो तमाम चीज़ें आपको देंगे जो आप चाहते हैं और डिज़र्व। Well, thank you so much, Arslan. That is indeed a very down-to-earth kind of an idea. So, viewers, it's very important to recognize that failure is not the opposite to the success, rather it is the part of the success. इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नए एपिसोड्स में ऑफ आई वेंचर्स। हमें फॉलो कीजिएगा यूट्यूब चैनल पे और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।